السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں آتش عشق اینڈ امریکن مانسٹر بائی صالحہ اقبال ایپیسوڈ 33۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، کون سا کیریکٹر آپ کو زیادہ پسند آ رہا ہے، اور ناول اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو فی الحال سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیر بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنے ہاتھ میں لگا ہوا کینولا دیکھ رہی تھی جس میں سے ڈرپ قطرہ قطرہ کر کے آ رہی تھی۔ ہیر وجدان کی انتظار میں اپنا وقت گزار رہی تھی جو اس کے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ وجدان دروازے کے باہر کھڑے ہوئے 2 پل ٹھہر کر گہری سانس لی اپنے آپ کو پرسکون کرتا وہ ریلنگ والا دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوتا ہے۔ دروازے کی آواز پر ہیر فوراً دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ ہیر روت لوسی شکل بنائے وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اب تو آ گیا نا؟ وجدان دروازے کو بند کیے ہیر کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کو میرے پاس ہونا چاہیے نا کہ مجھے آپ کو کسی سے کہہ کر بلانا چاہیے تھا۔ ہیر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہتی ہے، آ گیا اب تو گڑیا، اب کہیں نہیں جاتا۔ ہیر کے پاس آئے اس کی ڈرپ کی رفتار دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ ہیر کو محسوس ہو رہا تھا اس کا بدلا ہوا رویہ۔ وجدان؟ ہیر سر اٹھا کر پیار سے مسکراتے ہوئے کہتی ہے، جی۔ وجدان چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پاتا ہیر کو دیکھنے سے۔ کیا ہوا آپ کو؟ ہیر وجدان کی انگلی پکڑتے ہوئے پوچھتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وجدان ہیر سے ہاتھ چھڑوا کر خود اس کو ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، پھر کیوں منہ پھلایا ہوا ہے؟ وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، میرا منہ ہی ایسا ہے۔ وجدان اسٹول کھینچ اس پر بیٹھتے ہوئے کہتا ہے، وہاں مت بیٹھے، میرے پاس آ جائے۔ ہیر بیڈ پر تھوڑا سا سائڈ پر ہوتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں چوٹ لگی ہوئی ہے؟ وجدان نہ میں سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی وجہ سے درد تھوڑی ہوگا، مجھے آپ آ جائے نا۔ ہیر ضدی لہجے میں کہتی ہے، نہیں بچے، میں ہوں یہیں پر تمہارے پاس، تم آج ایسے ہی سو جاؤ۔ وجدان ہیر کے ہاتھ پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہتا ہے، پھر ہاتھ بھی چھوڑ دے میرا، میں ایسے ہی خود سے ہی سو جاؤں گی۔ ہیر اپنا ہاتھ چھڑواتے اپنا منہ موڑے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کر جاتی ہے۔ اتنی نوٹنکی کیوں ہو گئی ہو؟ وجدان اسٹول سے کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ آپ میری بات نہیں مانتے ہیں، مجھے مجبوراً مجھے نوٹنکی کرنی پڑتی ہے، تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ وجدان گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، سوائے آپ کے۔ ہیر مسکراتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے ہی تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف کھسکتی ہے۔ ہیر وجدان کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لیے اس کے ساتھ ایک بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ تم ٹھیک ہو جاؤ ایک بار، پھر تمہارا گھر سے باہر نکلنا بند کر دوں گا میں، نہ باہر جاؤ گی اور نہ ہی چوٹیں لگواؤ گی۔ ہیر کی سائڈ کروٹ لیے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہیر کا سر اپنے سینے سے لگائے وجدان دوسرے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے کہتا ہے، پھر آپ کو بھی میرے ساتھ گھر میں رہنا پڑے گا، آپ کے ساتھ میں کہیں بھی رہ لوں گی۔ ہیر وجدان کے ہاتھ پر کس کرتے ہوئے کہتی ہے، تم ٹھرکی نہیں ہو گئی ہو زیادہ؟ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنے شوہر سے فلرٹ کرنا جائز ہے؟ ہیر سر اٹھا کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، تمہیں کس نے بتائی ہے یہ بات؟ وجدان آئی برو اٹھاتے ہوئے پوچھتا ہے، کس نے نہیں مجھے پتا ہے، کسی نے نہیں، مجھے پتا ہے، جب شوہر میرا ہے تو اس کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہیر وجدان کی تھوڑی پہ لب کشائی کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے، بیگم بیمار ہو، آرام کرو، نیت نہ خراب کرو۔ وجدان ہیر کا سر واپس اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہتا ہے، ارے میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی بیمار ہوئی ہوں، کل تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ ہیر اپنی آنکھیں بند کرتی ہوئی کہتی ہے، تھوڑی سی بیمار نہیں ہو، بہت زیادہ ہو گئی ہو، ویسے گول مٹول چہرہ اچھا لگ رہا ہے، سوچ رہا ہوں تمہیں کھلا پلا کر پورا کا پورا گول مٹول کر دوں۔ وجدان ہیر کے بالوں میں مسلسل ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، نہیں۔ ہیر جھٹ سے آنکھیں کھولے بولنے لگتی ہے، کیا نہیں؟ وجدان بالوں میں ہاتھ روک کے پوچھتا ہے، مجھے موٹا نہیں ہونا، اتنی محنت کر کے میری اتنی پرفیکٹ باڈی بنائی ہے، موٹا نہیں ہونا، بالکل بھی نہیں ہونا۔ ہیر اپنے آپ کو موٹا تصور کرتے ہوئے کہتی ہے، پر وہ تو تم نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئی۔ وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، وہ کیوں؟ ہیر سر اٹھا کر وجدان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے، کیوں کا کیا مطلب؟ ماما نہیں بننا، موٹا تو ہونا پڑے گا ورنہ بیبی کیسے آئے گا؟ وجدان ہیر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ وجدان کی بات سنتے ہی ہیر اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا جاتی ہے۔ تم شرماتی بھی ہو؟ وجدان ایک بار پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے، ہاں تھوڑا شرما لیتی ہوں کبھی کبھی۔ ہیر دوبارہ سر اٹھا کر کہتی ہے تو اس کی نظر وجدان کے ہونٹوں پر جاتی ہے۔ بابا نے کیا ہے؟ وجدان کے ہونٹ پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے پوچھتی ہے، تحفہ دیا ہے مجھے ان کی بیٹی کا، اتنا اچھے سے خیال جو رکھتا ہوں میں۔ وجدان گہری سانس لیتے ہوئے کہتا ہے، کوئی بات نہیں، سسر ہے آپ کے، میں سوری کرتی ہوں ان کی طرف سے۔ ہیر معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہتی ہے، بس ایسے ہی رکھی سوری؟
وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اچھا تو نیچے آئے پھر۔ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان ہیر کے چہرے کے قریب جھکتا ہے کہ ہیر اس کے ہونٹوں پر اپنی لب رکھ دیتی ہے۔ سوری، وجدان سے دور ہوتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اوکے میم، سوری ایکسیپٹڈ۔ چلو سو جاؤ اب تم، ورنہ بھوک لگ جائے گی، ابھی نہیں ملے گا کھانا، ڈرپ کی وجہ سے صبح کھاؤ گی تم، اب سو جاؤ تم۔ وجدان ہیر کو اپنی باہوں میں قید کیے اس پر اچھے سے کمبل اڑھائے اسے نیند کی وادی میں اتارنے لگتا ہے۔ سکندر کہاں جا رہے ہیں ہم یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے؟ امیمہ سنسان سڑک پر ایک اکیلی اپنی گاڑی کے علاوہ کوئی گاڑی نہ دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ ہم گھر نہیں جا رہے ہیں، سکندر پرسکون سا جواب دیتا ہے۔ پھر کہاں جا رہے ہیں؟ امیمہ تجسس سے پوچھتی ہے۔ تمہیں بیمار کرنے لے جا رہا ہوں۔ تمہیں نے تو کہا کہ میری بیوی کا حکم کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ سکندر ٹیڑھی اسمائل کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سکندر میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے کہیں نہیں جانا، اب گھر چلیں، پورا دن ہسپتال میں ہی گزرا ہے آج میرا، اب مجھے سکون چاہیے۔ میں تھکی ہوئی آنکھوں سے سکندر کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ تو میری جان، تمہاری تھکن ہی تو دور کرنے جا رہا ہوں، آج رات تمہاری ساری تھکن دور کروں گا۔ سکندر امیمہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ امیمہ مکمل سکندر کی طرف اپنا رخ کیے سکندر کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تجسس سے پوچھتی ہے۔ وہ جو آج تک نہیں کیا میں نے وہ کرنے جا رہا ہوں میں آج تمہارے ساتھ، تمہیں اعتراض ہے؟ سکندر سڑک پر نظر جمائے ہوئے ہلکی سی گردن موڑ کر امیمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ یہ تو آپ جو میرے ساتھ کرنے لگیں گے اس کے بعد آپ کو بتاؤں گی اعتراض ہے یا نہیں۔ امیمہ واپس سیٹ پر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ سکندر مسکراتے ہوئے سڑک پر واپس دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ شہر میں خوبصورت سی عمارتوں میں گاڑی لیے گھستا ہے۔ جتنا اندھیرا آسمان میں چھایا ہوا تھا اتنی ہی لائٹوں کی چمک اس اندھیرے کو ختم کیے روشنی میں تبدیل کر چکی تھی۔ یہ ایک الگ سی ہی دنیا تھی، بڑی بڑی ایک سے بڑھ کر ایک بلڈنگ تھی جس میں روشنیوں کی چمک چار چاند لگا رہی تھی۔ ان کی خوبصورتی کو امیمہ کی نیند، اس کی تھکاوٹ ساری اپنے سامنے کے خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہوئے اڑ گئی تھی۔ امیمہ کے چہرے پر الگ سی چمک تھی جو سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بن رہی تھی۔ لگتا ہے تھکان ابھی سے دور ہونے لگ گئی ہے، ابھی تو ہم منزل پر بھی نہیں پہنچے ہیں۔ سکندر گاڑی کو ایک وسیع اور خوبصورت سی عمارت کے سامنے لے جاتے پارک کرتے ہوئے کہتا ہے۔ لگ تو مجھے بھی یہی رہا ہے۔ امیمہ سکندر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہتی ہے۔ چلو آ جاؤ، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ میں اور چار چاند لگاتا ہوں جس سے تمہارا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ سکندر اپنی سیٹ بیلٹ کھولتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہی گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے۔ امیمہ اسے باہر دیکھتے ہوئے اپنی سیٹ بیلٹ کھولتی ہے کہ سکندر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا۔ مجھے پرنسس پروٹوکول دینے والے ہیں کیا؟ امیمہ سکندر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، سکندر امیمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے حفاظت سے گاڑی سے باہر نکلتے ہوئے بولا۔ پھر امیمہ سکندر کے سامنے کھڑی ہو کر پوچھتی ہے۔ ڈوریمون پروٹوکول دینے والا ہوں میں تمہیں؟ سکندر امیمہ کا گال کھینچتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نہیں سدھریں گے۔ امیمہ گہرا سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ الحمدللہ میں پہلے ہی بہت سدھرا ہوا ہوں، ایک قابل ڈاکٹر ہوں میں۔ سکندر اپنے سینے پر ہاتھ رکھے سر جھکا کر کہتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک کرپٹ بزنس مین بھی ہے آپ۔ امیمہ سکندر کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے۔ ہائے صدقے جاؤ، میری بیوی کتنے اچھے سے جانتی ہے مجھے۔ سکندر امیمہ کے گال پر کس کرتے ہوئے کہتا ہے۔ امیمہ اس کی حرکت مسکرا کر سکندر کو دیکھتی ہے اور دیکھتے ہی وہ نظریں پیچھے کی طرف گھماتے ہی وہ جیسے ہی پیچھے منہ کرتی ہے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ سفید رنگ کا قدیم خوبصورت محل نما گھر جو مکمل سفید رنگ کی چادر میں لپٹا ہوا تھا، اس کے اندر کی چمکتی ہوئی روشنیاں دور سے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ماشاءاللہ، امیمہ پھٹی آنکھوں سے کھلے ہوئے منہ سے اس محل نما کو باہر سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ سکندر، یہ کس کا گھر ہے؟ امیمہ کی آنکھوں میں اس گھر کی روشنیوں کی چمک دمک تھی جو اس کو اپنی سانسیں بھولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ تمہارا ہے؟ سکندر کی نظریں مسلسل امیمہ کے چہرے پر ہوتی ہے، اس سے وہ نظریں ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ سکندر کے دل میں سکون اتر رہا تھا امیمہ کو خوش دیکھ کر۔ میرا؟ امیمہ سکندر کو ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جی، آپ کا؟ سکندر امیمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ جس جگہ وہ کھڑے تھے اس سے کافی دور تھا۔ سکندر گاڑی سے چند قدم آگے بڑھتا ہے تو سامنے 7 سیڑھیاں ہوتی ہیں، ان پر قدم رکھے وہ جیسے آگے بڑھتا ہے وہ بھی ایک نظر لائن میں گھومتا ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر ایک بہت بڑا، بہت ہی بڑے لان میں سیڑھیوں کے بالکل درمیان میں ایک خوبصورت سا فوارہ لگا ہوا تھا جس میں سے پانی نکل رہا تھا۔ اس پانی کے پورے لائن میں ایک کناری میں درخت، الگ الگ قسم کے درخت تھے۔ درختوں سے آگے کناری بنائی ہوئی تھی جس میں ہر قسم کے پھول لگے ہوئے تھے اور پھول بھی تر و تازہ کھلے ہوئے تھے۔
उमैमा का दिल बाहर की खूबसूरती देख कर ही पिघल गया था। चेहरे पर 40 वर्ल्ड का बल्ब जगमगा रहा था। वैसे आप ये सब मेरे नाम क्यों खरीद रहे हैं? आजकल कर गर्विदा करना चाहते हैं आप मुझे अपना? उमैमा अपने सामने चलते हुए सिकंदर की पुश्त देखते हुए पूछती है। हाँ, करना तो चाहता हूँ, पर लालच से नहीं, मोहब्बत देकर। सिकंदर महलनुमा घर के दरवाजे पर पहुंचकर कहता है। दोनों घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए दरवाजे को देख रहे थे। पहला कदम तुम रखोगी अंदर, फिर मैं। सिकंदर उमैमा का हाथ छोड़ते हुए खुद एक कदम पीछे की तरफ उठाते हुए कहता है। मैं क्यों? उमैमा सिकंदर की तरफ रुख मोड़ कर पूछती है। क्योंकि ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे लिए खरीदा है मैंने इसको। मैं इसमें पहले मेरे से पहले जाने का जवाब ही नहीं बनता। सिकंदर दोनों हाथ कमर पर बांधते हुए कंधे उचकाते हुए कहता है। आप अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए ये सब चीज़ें मेरे नाम पर खरीद रहे हैं। अगर कभी कोई फंसा तो वो मैं होंगी, आप नहीं। मोहम्मद सिकंदर की तरफ बढ़ते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। तुम पर खर्च किया हुआ पर पैसा मेरी मेहनत की कमाई का है। पागल नहीं हूँ जो हराम चीज़ हलाल इंसान पर खर्च करूँगा। सिकंदर उमैमा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है। इतना प्यार करते हैं? मैंने कभी सीधे मुंह आपसे बात नहीं की, फिर भी। उमैमा सर उठाकर दरवाजे की चौखट पर खड़ी सफ़ेद रोशनी में सिकंदर की आंखों में चमक देखते हुए पूछती है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा अभी भी? सिकंदर उमैमा की आंखों में देखते हुए पूछता है। नहीं आ रहा है। आप जैसे बदतमीज़, खड़ूस, अनापरस, सड़ील इंसान को कैसे मुझ जैसी लड़की से मोहब्बत हो सकती है जिसने कभी नज़र उठाकर आपको देखना पसंद नहीं किया? उमैमा अपने दिल में और दिमाग में उठते हुए सवाल पूछ लेती है। सामने खड़े शख्स के एहसासात से वो अच्छे से वाकिफ़ थी, और वाकिफ़ होती भी कैसे नहीं। उसके दिल में भी अब वही एहसासात जो पैदा हो चुके थे। सिकंदर की मोहब्बत पर यकीन था उसको, लेकिन वो फिर भी उससे इजहार मोहब्बत सुनना चाहती थी। सिकंदर की उससे मोहब्बत की वजह सुनते हुए उमैमा के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। वो आज उसके मुंह से निकले लफ्ज़ों को सिर्फ सुनना ही नहीं बल्कि महसूस भी करना चाहती थी। तुमने मुझे नज़र उठाकर देखा नहीं, इसलिए मेरी नज़र तुम पर रुक गई थी। वो कहते हैं ना कि नज़र नज़र का फ़र्क होता है मेरी जान। तुमने मुझे नज़र उठाकर देखना गवारा नहीं किया, और मैंने एक नज़र में तुम्हें इतना देख लिया कि फिर कुछ और देखने का दिल ही नहीं किया। तुम्हारा मुझे नज़रअंदाज करना मुझे पसंद आया था। हम क्रिमिनल्स की दुनिया का उसूल है, जो नज़रअंदाज करे हमें उसके हर अंदाज को अपनाया जाए, क्योंकि जो हमें नज़रअंदाज करे वो कोई आम तो नहीं। सिकंदर उमैमा के माथे पर बोसा देते हुए कहता है। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं पूरी रात यहाँ खड़ा होकर तुम्हारे साथ बातें कर सकता हूँ, लेकिन अंदर जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि दिन में यहाँ की चमक दमक फीकी हो जाएगी। वो सुकून और मज़ा इन रोशनियों में रात में कदम रखने का है, वो दिन के उजाले में कहाँ। सिकंदर उमैमा का रुख दरवाजे की तरफ मोड़ते हुए कहता है। चलो अपने ज़ाती घर में रखो अपना पहला कदम, और कर लो इससे अपने नाम दिल से। सिकंदर दोबारा अपने दोनों हाथ कमर में बांध लेता है। उस घर के कागजात पर आपने मेरा नाम लिखवाया है? उमैमा मुड़कर सिकंदर से पूछती है। हाँ हाँ, में सर हिलाते हुए कहता है। क्या नाम लिखवाया है? उमैमा मुस्कुराते हुए पूछती है। उमैमा सिकंदर आलम। सिकंदर ठहर ठहर कर जवाब देता है। बिल्कुल उमैमा सिकंदर आलम, जब हमारा नाम एक है तो ये घर सिर्फ मेरा कैसे हुआ? उमैमा सिकंदर के पास आया, उसका हाथ कमर से हटाते अपने हाथों में कैद किए मुस्कुराते हुए सिकंदर के चेहरे को देखती है। काफ़ी समझदार हो गई हो। सिकंदर उमैमा के हाथ को मजबूती से अपने हाथ में कैद करते हुए कहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, पैदाइशी हूँ। उमैमा हंसते हुए जवाब देती है। चले अब अपने घर। उमैमा बड़ी बड़ी आंखें किए पूछती है। वो अंदर जाने के लिए बेचैन हो रही थी। चलो फिर। सिकंदर उमैमा दोनों हाथों में हाथ डाले घर में दरवाज़ा अपने दूसरे हाथ से खोले, दोनों एक साथ अपने इस खूबसूरत से नए से बंगले में कदम रखते हैं। 2 कदम ही अंदर गए थे कि सिकंदर उमैमा को रोक देता है। रुको, ऐसे नहीं अंदर जाओगी। सिकंदर उमैमा का हाथ छोड़ते हुए कहता है। क्या मतलब? उमैमा हैरानगी से पूछती है। मतलब ये कि ये लो। सिकंदर सिकंदर घर में दाखिल होते ही सामने पर टेबल से एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स उठाकर उमैमा की तरफ लाता है। ये क्या है? उमैमा बॉक्स पकड़ते हुए पूछती है। तोहफ़ा है तुम्हारे लिए। सिकंदर जेब में हाथ डालते हुए उमैमा को देखते हुए कहता है। तोहफ़ा? किस लिए? उमैमा तजस्सुस से भरी नज़रों से देखते हुए पूछती है। आज की रात की खूबसूरत सी शुरुआत करने के लिए जाकर तैयार हो जाओ। कैसी खूबसूरत शुरुआत? सिकंदर अपनी बातों में मुकम्मल उमैमा को घुमा चुका था। वो पता लग जाएगा तुमको, जाओ जाकर तैयार होकर आओ। सिकंदर उमैमा का रुख मोड़कर उसके पीछे बने हुए गेस्ट रूम की तरफ इशारा करता है। सिकंदर, आप क्या करने का सोच रहे हैं? उमैमा मुड़कर हैरान कुन नज़रों से देखते हुए पूछती है। वही मेरी जान, जो आज तक सिर्फ सोचता आया हूँ, आज वो करने का इरादा हो गया है मेरा। उमैमा के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है। आपके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे हैं सिकंदर। उमैमा बड़ी बड़ी आंखें किए कहती है। खूबसूरत रातों में इरादे नेक रखकर गुनाह नहीं करते, ऐसी रातें तो गुनाह करने के लिए होती है।
उमामा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी। सिकंदर की बात पर वो उसे ज़ब्त कर लेती है। मैं आती हूँ, उमामा कहते ही सिकंदर के हाथों से अपना चेहरा आज़ाद करवाए फर्स्ट फ्लोर पर बनी दाएं हाथ की तरफ एक खूबसूरत से गेस्ट रूम में चली जाती है जो फुली फर्निश था। निक भी दूसरी तरफ निक भी आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। पहला इतना लंबा सफ़र उसने तय किया था जिसको करने के बाद उसके चेहरे पर थकान नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। वो शोएब और मनीष को अपनी दुबई में होने का बताकर भी नहीं आया था। उसने अपनी मोहब्बत की कहानी को सिवाय उमैमा के अलावा और किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसके हिस्से में कामयाबी आती है या नाकामी, वो जब तक मंजिल पर नहीं पहुँच जाता वो उसे सिर्फ अपने अंदर कैद किए रखना चाहता था। दुबई पहुंचे उसे आधा घंटा हो चुका था। वो सीधा डेविल के होटल में अपने लिए रूम बुक किए वहां जाकर लेटते ही सो जाता है। डेविल की दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों में होटल्स और कसिनो थे जो उसके आदमी ही संभालते थे। उसे संभालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। उसका नाम काफ़ी था लोगों को दिन रात मेहनत से काम करवाने के लिए, और वो खुद सिर्फ इटली को ही देखता था। दुबई का एक खूबसूरत सा होटल जो ब्लू लाइट्स की रोशनियों में चमकता था, शीशे की बनी एक खूबसूरत सी इमारत जो होटल होने के साथ साथ रेस्टोरेंट भी था। नीचे एक बहुत बड़ा और खूबसूरत सा रेस्टोरेंट बना हुआ था जो तकरीबन 2 फ्लोर पर मबनी था। उसके ऊपर से होटल स्टार्ट हो जाता है। निक ने अपने लिए एक वीआईपी रूम बुक किया था जिसमें उस वक्त मुंह के बल बेड पर तकिए में मुंह दिए सोया पड़ा था। पैरों से शूज़ तो उतार लिए थे, लेकिन सॉक्स उतारने से पहले ही वो नींद की गहराइयों में डूब चुका था। हीर पुरसुकून सी वजदान की बाहों में उसके सीने पर सर रखे सोई हुई थी। कुछ थकान की वजह से नींद थी और कुछ ड्रिप के ज़रिए उसे सुकून की दवाई की वजह से वो गहरी नींद में सोई पड़ी थी। वजदान भी गहरी नींद में सोया हुआ, लेकिन करवट ले के लिए वो मुड़ने लगता है करवट लेने के लिए मुड़ने लगता है कि उसकी आंख खुल जाती है। वजदान की आंखें भी नींद से भरी हुई थी। इतने दिन गुजर गए थे, उससे भी सुकून और सुकून की नींद कहाँ नसीब हुई थी। वजदान थोड़ी सी आंख खोले अपनी बाहों में सोई हुई हीर को देखता है, और देखते ही वो उसकी कमर पर हाथ रखे उसे खुद से दूर करता है। बेड से उतरकर वो नींद की हालत में हीर को बेड पर दरमियान में सीधा करके लिटाता है ताकि उसके दर्द में इजाफा ना हो जाए। वजदान को उसकी चोट का ख्याल अपनी नींद में भी होता है। हीर को बेड पर लिटाते उसे उस पर अच्छे से कंबल उड़ाते वजदान वहीं बेड के पास पड़े स्टूल पर बैठकर हीर का हाथ अपने हाथ में पकड़े उसके हाथ पर टिकाए वजदान दोबारा सो जाता है। वो ना उससे दूर जाता है और ना ही उसको दर्द में रहने देता है। खुद बेचैन हो जाएगा, लेकिन हीर के सुकून की उसे खुद से ज़्यादा फिक्र थी। वजदान खुद थका हुआ था, लेकिन वो फिर भी हीर का हाथ नहीं छोड़ता है। उसके हाथ पर अपना सर टिकाए वो गहरी नींद में सो गया था। आज की तारीख में आ जाओगी बाहर या नहीं? सिकंदर को उमैमा का इंतज़ार करते हुए आधा घंटा हो गया था। वो इस दौरान मोबाइल पर गेम भी खेल चुका था, टहल भी चुका था और हॉल की हर चीज़ का मुआयना भी कर चुका था। लेकिन उमैमा कमरे से बाहर नहीं निकली थी। वो कमरे का दरवाज़ा लॉक किए ड्रेसिंग टेबल के सामने सिकंदर के दिए हुए गिफ्ट बॉक्स में उसके दिए हुए कपड़ों को पहनती है, या ये कह सकते हैं, या फिर पहनने की कोशिशों में लगी हुई होती है। सिकंदर उसके लाल सुर्ख रंग की सिल्क की एक खूबसूरत सी साड़ी लाता है जो बिल्कुल सिंपल सी थी, पर साड़ी के कोने पर एक बारीक सी गोल्डन कलर की किनारी बनी हुई थी जो साड़ी की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। वह साड़ी की चोली पहनी हुई ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई। चोली उसके पेट तक की थी जिसकी बैक बिल्कुल खाली थी। सिर्फ 2 डोरियां थी जो उसकी चोली को बांधे हुए थी। आधी साड़ी को तो वो पहन चुकी थी, लेकिन उसके बल उससे ठीक से सेट नहीं हो रहे थे। वो ड्रेसिंग टेबल के शीशे पे अपने फ़ोन को टेक लगाए हुए वीडियो को देखते हुए उमैमा साड़ी पहन रही थी। साड़ी में वो उलझी हुई थी, लेकिन बाकी वो मुकम्मल तैयार हो चुकी थी। बॉक्स में उसके तैयार होने जितना मेकअप का सामान, उसकी साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी और हील्स सब मौजूद थी। उमैमा मुकम्मल तैयार थी, बस साड़ी के बल सेट करने में मसरूफ़ हुई पड़ी थी। आ रही हूँ मैं बाहर, क्यों हमेशा इतनी बेचैन रहते हैं तुम, मुझे बेचैन करके रखती हो, क्या करूँ मैं? सिकंदर उमामा को देखने के लिए बेचैन हुआ पड़ा था। चाहे जो भी हो जाए, वो जहांगीर से जितना मर्जी दूर रहा हो, लेकिन सिकंदर था तो जहांगीर का ही बेटा। दोनों बाप बेटे रहे दूर है लेकिन एक दूसरे से, लेकिन दोनों की ख्वाहिशात एक जैसी थी। जहांगीर भी हया को ब्लैक कलर की साड़ी में पहली बार देखने को बेचैन था, और आज सिकंदर की भी वही कैफियत थी। बस वो उमामा को अपने सामने साड़ी में देखना चाहता था। फ़िलहाल तो आप इंतज़ार करें, जितने मुश्किल कपड़े आपने मुझे ला कर दिए हैं ये पहनूंगी तो आऊँगी। उमम अपनी कोशिशों में कामयाब होने ही वाली थी, जो साड़ी के बल को तकरीबन सेट कर चुकी थी। मुश्किल कपड़े क्या होते हैं, कपड़े तो कपड़े होते हैं। सिकंदर दरवाजे के बाहर ही घूम रहा था और घूमते हुए कहता है, आपको पहनने पड़ते ऐसे कपड़े, फिर पता लगता आपको ये आसान होते हैं या मुश्किल। उमैमा साड़ी के पल्लू को अच्छे से सेट किए गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ
तुम्हारी इन्हें पहनने में, आ जाओ अंदर मैं। सिकंदर दरवाजे से टेक लगाते हुए कहता है, जी आ जाए, अगर अब मुझसे अपनी तारीफ़ के कसीदे सुनने का दिल हो रहा है तो अंदर आ जाए। उमैमा साड़ी का पल्लू सेट करते हुए कहती है, ठीक है मैं नहीं आता, अगर 5 मिनट में तुम बाहर ना निकली तो मैं अंदर आ जाऊँगा। सिकंदर के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। शर्म करे सिकंदर, उमैमा दरवाजे को घूरते हुए कहती है। शर्म वाली क्या बात है, तुमने 1 घंटा लगा दिया है इसको पहनने में, जबकि मुझे 1 मिनट नहीं लगा इसको नहीं लगेगा इसको उतारने में। सिकंदर दरवाजे से दूर होता दोनों हाथ कमर पर रखे दरवाजे को देखते हुए कहता है, आ रही हूँ बाहर या नहीं। सिकंदर सब्र करते करते अब थक गया था। वो गुस्से में दरवाजे को घूरते हुए पूछता है, 5 मिनट तो पूरे होने दे, आ जाऊंगी मैं बाहर। सिकंदर के लहजे में गुस्सा उमैमा को साफ महसूस हो रहा था, लेकिन उसे उमैमा सिकंदर को मज़ीद तपाने के फुल मूड में थी। 5 मिनट हो गए हैं, आ जाओ बाहर, टाइम ख़त्म हो जाए, सब हो जाएगा, फिर बाहर आओगी। सिकंदर कमर से हाथ छोड़ते मुड़कर हॉल में लगी एक बड़ी सी वॉल क्लॉक की तरफ देखते हुए कहता है, 1 मिनट रुके, आई बस। उमैमा। सिकंदर घड़ी को देखते हुए आवाज़ लगाता है, जी। उमैमा हील्स पहनते हुए जवाब देती है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, सीधी ऊपर आ जाना, 2nd फ्लोर पर दरमियान वाला रूम, दरवाज़ा खुला होगा, वहीं आ जाना 1 मिनट के अंदर, ठीक है। सिकंदर 2nd फ्लोर की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा आप चले, मैं आ रही हूँ। मैम अपनी टांग पर टांग रखे हील्स पहनते हुए जवाब देती है। सिकंदर 2nd फ्लोर के दूसरे कमरे की खूबसूरत सी गैलरी में खड़ा होकर आसमान की तरफ धड़कते हुए दिल से देख रहा था। नज़रें मुसलसल कभी आसमान तो कभी अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी की तरफ टिकी हुई थी। कहाँ रह गई हूँ मैमा, यहाँ सब शुरू हो जाएगा, तुम फिर आओगी क्या। सिकंदर अपने हाथों को मसलते हुए बेचैनी से धड़कते हुए दिल से आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं आ गई मैं। दरवाजे में खड़ी हुई अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में पकड़े हुए सिकंदर की पुश्त को देखते हुए कहती है, और कहते ही वो कमरे की तरफ देखती है जो फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ लाल गुलाब थे और उनसे उठती हुई खुशबुएं। कमरे की लाइट्स बंद थी, पूरे कमरे में मोमबत्तियां जलाई हुई थी जो कमरे को रोशन किए हुए थी। उमैमा कमरे से नज़र हटाकर सिकंदर की तरफ देखती है और मजबूती से अपने हाथ में साड़ी का पल्लू पकड़ लेती है। शुक्र है, सिकंदर कहते हुए जैसे ही मुड़ता है लाल सुर्ख रंग की साड़ी में उमैमा को खुद को देखता देख कर वो भी खामोश सा उमैमा का चेहरा और चेहरे से नज़र हटाकर उसको सर से पैर तक लाल साड़ी में देखता ही रह जाता है। लाल सुर्ख साड़ी जिसकी बाजू नहीं थी, कंधे पर कनी सी थी और कमर पर इसकी नारी की डोरियां बंधी हुई थी। गोल्डन कलर का सॉफ्ट सा मेकअप किए, गालों को हल्का हल्का सा लाल रंग में रंगे, आंखों पर लाइट मेकअप किया था, होठों पर डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाए हुए, कानों में झुमके पहने हुए, गले को सूना छोड़कर उमैमा कमरे को डेकोरेट देखकर अपनी नज़रें झुका लेती है। सिकंदर ने इटली की लड़की को उसके रूप से बरक्स बनाए अपने सामने खड़ा किए हुए थे। उसे अंदाज़ा नहीं था कि उमैमा पर यह रंग इतना खूबसूरत लग सकता है। उमैमा नज़रें झुकाए हुए दरवाजे में खड़ी हुई थी। सिकंदर उमैमा से नज़र हटाने से कासिर था। उमैमा की तरफ बढ़ते हुए वो उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। सिकंदर अपना कोट पहले ही उतार कर सोफे पर फेंक चुका था। सिकंदर ब्लैक कलर की शर्ट जिसकी बाजू को कोहनियों तक फोल्ड कर चुका था, उमैमा को टुकटुकी बांधे देखते हुए उसके सामने जा खड़ा होता है। बिना कुछ बोले वो उसके साड़ी को मजबूती से पकड़ा हुआ हाथ उसकी साड़ी से हटाकर उसे पकड़कर उमैमा को अपनी तरफ खींचता है। खींचते ही उसकी कमर पर हाथ रखे उसे अपने सीने से लगाए वह हाथ बढ़ाकर कमरे के दरवाजे बंद करता है। उमैमा की कमर पर कुछ भी नहीं था। सिकंदर का हाथ उसकी उंगलियों बआसानी अपनी कमर पर महसूस कर रही थी। हील्स में उमैमा सिकंदर के कंधे तक बआसानी पहुंची हुई थी। सिकंदर दरवाज़ा बंद करते उमैमा की कमर पर गिरफ्त मजबूत उसके जिस्म की खुशबू अपने अंदर समाने लगता है। आंखें बंद किए वो उसको महसूस करता है। इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। सिकंदर उमैमा के कान के करीब सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है। वो उमैमा सिकंदर से दूर होने की कोशिश करती है, पर सिकंदर उमैमा की कमर पर अपना दूसरा हाथ रखकर भी उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। वो मैं क्या, पता है ना सिकंदर, आलम के सब्र को आजमाने की सज़ा कैसी हो सकती है। सिकंदर झुककर उमैमा की गर्दन पर अपने लब रखते हुए कहता है, मैं आ रही थी, इसमें उलझ गई थी। सिकंदर के लब अपनी गर्दन पर महसूस करते उमैमा की सांसें रुकने वाली हो गई थी। उमैमा अपने आप को नॉर्मल करते हुए अपनी साड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो मैंने कहा था ना मेरी जान, मुझे अंदर आने देती, मैं मदद कर देता तुम्हारी। सिकंदर गर्दन को आज़ाद की उमैमा की आंखों में देखते हुए कहता है, आप कैसे मदद करते। उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए पूछती है, मैं तुम्हें इसे पहनने ही नहीं देता, जब बाद में इसने उतरना ही था मेरे हाथों। उमैमा की साड़ी को अपने हाथों में पकड़े उसको चूमते हुए कहता है, सिकंदर बहुत देर हो गई है, घर चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। उमैमा अपनी साड़ी उसके हाथ से निकाल कर हिचकिचाते हुए कहती है, और कहते ही मुड़कर सिकंदर की कैद से निकल कर मुड़ मुड़ कर दरवाजे को खोलने लगती है।
उमैमा सिकंदर उमैमा को कमर से पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए उमैमा को दरवाजे को पिन किए उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़े दोनों हाथों को दरवाजे से पिन कर देता है। तुम्हें और इस कमरे को इतना तैयार मैंने सिर्फ दूर से देखने के लिए तो नहीं किया है। सिकंदर उमैमा को की आंखों में देखते हुए उसकी मुस्कुराते हुए कहता है, पहले वो तो कर ले जो करने आए हैं, फिर चले जाएंगे घर भी। सिकंदर उमैमा के होठों को फोकस में लेते हुए कहता है, सुहागरात मनाने मेरी जान, आज की रात हम दोनों के एक होने की रात है। सिकंदर झट से उमैमा के हाथ छोड़ता है और उसकी कमर पर दोनों हाथ रखे उसे अपने सीने से लगाए बाहों में कैद करता है। सिकंदर नहीं। उमैमा के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लग गई थी, जैसे अभी उसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। क्यों नहीं मेरी जान, वैसे तो शादी की पहली रात को ये कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई अभी भी कुछ खास देर नहीं हुई है। हम अपने नए घर में रहने की शुरुआत अच्छी यादों से करते हैं। सिकंदर उमैमा के होठों पर झुकते हुए कहता है। सिकंदर बस चुप हो जा, अब कुछ मत बोले। सिकंदर उमैमा के होठों पर अपनी लब रख ही देता इससे पहले ही वो उसके मुंह पर हाथ रखे उसे खामोश करवा चुकी थी। उमैमा सिकंदर की बातों पर लाल सुर्ख होने लग गई थी। नज़र उठाकर सिकंदर की आंखों में देखना इंतहाई मुश्किल हो गया था उसके लिए। मेरी बातें सुनते ही तुम्हारी हालत ख़राब हो रही थी। सब जब मैं ये सब करूँगा तो क्या बनेगा तुम्हारा। सिकंदर उमैमा की उठती गिरती पलकों को देखते हुए उसकी रुकी हुई सांसों को सुनते हुए कहता है, चलो 2 पल के लिए तुम्हें सांस लेने दे देता हूँ, फिर तुम्हारी सांसों पर काबिज हो जाऊँगा मैं। सिकंदर उमैमा की कमर से हाथ हटाते हुए कहता है, टाइम हो गया है, आ जाओ कुछ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। सिकंदर हाथ पकड़े उमैमा को गैलरी की तरफ लिए बढ़ता है। क्या दिखाना है? उमैमा तजस्सुस से पूछती है, आ जाओ दिखाता हूँ। सिकंदर गैलरी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, 3, 2, 1। सिकंदर गिनती कर रहा था और उमैमा हैरानगी से उसके चेहरे की जानिब देखने लगती है। वेलकम टू द इटालियन अनदर ब्यूटीफुल वर्ल्ड माई लव। सिकंदर कहता है और पूरे स्टेट की लाइट्स ऑफ हो जाती है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है। उमैमा सिकंदर से नज़र हटाए अंधेरे की तरफ देखती है जिसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। नीचे नहीं मेरी जान, ऊपर देखो। सिकंदर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, जहाँ आसमान पर वेलकम इटालियंस इन अनदर ब्यूटीफुल स्टेट। हर तरफ पटाखे और गोलियों की आवाज़ें शुरू हो जाती है। वो थमती है तो लोगों की खुशी के मारे हंसी की आवाज़ें। उमैमा की नज़र आसमान पर टिकी हुई थी। फुलझड़ियाँ, अनार और न जाने किस किस किस्म के पटाखे जलाए जा रहे थे जो आसमान में जाते ही खुल जाते हैं। उमैमा के चेहरे पर मुस्कुराहट छा जाती है। उसने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मंजर देखा था। कैसा लग रहा है मेरी बीवी के लिए मेरी तरफ से पहला तोहफ़ा। सिकंदर उमैमा के पहले पीछे आए उसके पेट के गिर्द बाजू का हिसार बांधे उसे अपनी बाहों में कैद करते आसमान की तरफ देखते हुए पूछता है, बहुत अच्छा, पर ये सब क्यों हो रहा है? उमैमा गर्दन मोड़कर सिकंदर से पूछती है, क्योंकि ये स्टेट आज ही मुकम्मल हुआ है। ये इटली के मुल्क में एक और छोटे से इटली की दुनिया बनाई गई है जो यहाँ के सिर्फ़ और सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। ये सब जो है ना, वो सब पेंट हाउस है। सिकंदर गैलरी से बाहर आमने सामने आसपास बनी हुई बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, सिर्फ ये एक वाहिद घर था इस स्टेट में जो यहाँ के मालिक का था, पर अब जिससे मैंने ख़रीद लिया है। सिकंदर उमैमा की कमर से उसके बिखरे बालों को हटाते हुए कहता है, पर आपको ख़रीदने की क्या ज़रूरत थी? आप तो पहले ही हवेली में रहते हैं। सिकंदर उमैमा के कंधे पर अपनी लब रखने लगता है कि उमैमा पलटकर सिकंदर की आंखों में देखते हुए पूछती है। उमैमा के पलटने पर ही सिकंदर गहरी सांस लेता है। मेरी हवेली नहीं है। सिकंदर उमैमा की आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों नहीं है? आप डेविल के बेटे हैं, जो उनका है वो आपका है। आपको इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? उमैमा सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, तुम आज की रात भी बातें करके इसको बर्बाद करना चाहती हो? सिकंदर उमैमा की कमर पर हाथ रखते हुए गुस्सेले लहजे में कहता है, आप गुस्सा कर रहे हैं मुझ पर? मैंने क्या कहा ऐसा? उमैमा कहते ही अपना सर झुकाए सिकंदर को खुद से दूर किए वो कमरे की तरफ अंदर बढ़ने लगती है। सिकंदर उमैमा की कमर को उस पर लटकती हुई डोरियों को देखते हुए वो गहरी सांस लेते झट से उसके करीब जाता है और उमैमा की डोरी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। सिकंदर, क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरी डोरी को। उमैमा धड़कते दिल से मज़ीद तेज़ी से बढ़ती हुई धड़कनों से गहरी सांस लेते हुए कहती है, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इसे खींच दूंगा। सोचो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। सिकंदर उसे खींचते हुए ही कहता है और साथ साथ अपनी शर्ट के बटनों को भी खोलने लगता है। सिकंदर, नहीं, प्लीज़ छोड़े आप मुझे, मैं नहीं जाती कहीं। उमैमा अपना कमर से बढ़ाए अपनी डोरी को पकड़ने की कोशिश करती है। छोड़ना ही तो नहीं चाहता मेरी जान। अगर ज़बरदस्ती तुम छुड़वाओगी तो ये टूट जाएगी। आ जाओ वापस पीछे मेरे पास। सिकंदर अपनी उंगली में
डोरी को बल देते हुए कहता है, सिकंदर आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे, मैं नहीं आऊँगी आपके पास। उमामा अपने दिल पर हाथ रखते हुए अपनी आंखें मीचते हुए कहती है, इरादे तो मेरे वाकई में ही ठीक नहीं है मेरी जान, अगर तुम नहीं आई तो मैं आऊँगा, और अगर मैं आया तो आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें जितनी मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करनी है अभी उससे भी दुगना तुम्हें तड़पाऊँगा मैं। सोच लो मैं आऊँ तुम्हारे करीब या तुम आ रही हो। सिकंदर शर्ट का दूसरा बटन खोलते हुए कहता है, सिकंदर आप क्यों तंग कर रहे हैं मुझे, छोड़े मुझे। उमा बेबसी से कहती है पर मुड़कर सिकंदर को नहीं देखती। तो तुम नहीं आ रही हो फिर नहीं आ रही हो, मैं आऊँ फिर। सिकंदर डोरी को खींचते हुए कहता है, आ रही हूँ मैं, आप रुक जाए। उमामा अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए पीछे की तरफ कदम बढ़ाती है और सिकंदर के सामने खड़ी होती है। मुड़ जाओ। सिकंदर उमामा को अपने सामने खड़ा देखते हुए कहता है। सिकंदर के कहने पर वो अपनी धड़कनों को रोकते हुए अपने हाथों में साड़ी मजबूती से पकड़े वो सिकंदर के सामने मुड़कर खड़ी हो जाती है। तुम प्यार से मेरी बात नहीं मानती नहीं हो, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हें तंग करना पड़ता है। उमामा की कमर से बाल हटाते उसकी खाली कमर को देखते हुए उस पर अपनी उंगली फेरते हुए उमामा के करीब आता है। उसकी गर्दन पर अपनी लब रखते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है। सिकंदर के लबों की शिद्दत पर उमामा अपनी आंखें बंद कर लेती है। सिकंदर उसकी डोरी को छोड़े उसके कंधे पर लगी स्टेप पिन को खोलने लगता है। उमामा सिकंदर की हरकत पर झट से उसकी तरफ मुड़ जाती है। वो जैसे ही मुड़ती है साड़ी के पल्लू के नीचे से उमामा के पेट पर सिकंदर का हाथ होता है। डर रही हो? सिकंदर थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किए पूछता है। तो नहीं तो नहीं लगना चाहिए, डर तो नहीं लगना चाहिए। उमामा सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहती है, तो नहीं लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए, इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं महरम हूँ, जो होगा हमारे दरमियान वो सब जायज़ होगा। सिकंदर उमामा को थोड़ी से पकड़े हुए उसकी आंखों में देखते हुए होठों के करीब आता है। उमामा कहने ही लगती है कि सिकंदर उसके होठों पर काबिज हो चुका था। उसके होठों पर झुके वो उसकी गर्दन पर हाथ रखे दूसरे हाथ से उसकी कमर पर गिरफ्त बढ़ाए उमामा के होठों पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगता है। उमामा अपनी आंखें बंद किए सिकंदर की शर्ट को मुट्ठी में जकड़े उसके लम्स पर उसकी शिद्दत पर खुद को सैराब करने लगती है। सिकंदर उमामा के लबों को आज़ाद किए उसे बाहों में उठाए बेड की तरफ बढ़ता है। उमामा को बेड पर लिटाते ही वो अपनी शर्ट उतारे बेड पर फेंके, फिर उमामा पर झुक कर उसकी लबों पर काबिज हो चुका था। उमामा के हाथों की उंगलियों की खाली जगह पर अपनी उंगलियां फंसाए वजदा सिकंदर उस पर झुके मुकम्मल तौर पर उसे अपने आप में कैद कर चुका था। उसकी शिद्दत इतनी थी कि उमामा बआसानी सांस ले पा रही थी। सिकंदर दो पल के लिए उसके होठों को रिहाई बख्शी उसकी गर्दन पर झुके शिद्दत से भरे लब रखने लगता है। एक हाथ को छोड़े वो उसके कंधे से साड़ी का पल्लू हटाए उसके कंधे पर आ झुकता है। उमामा अपनी आंखें मजबूती से बंद किए सिकंदर को उसकी मोहब्बत को महसूस करने लगती है। सिकंदर कंधे से हटते हुए दोबारा उसके होठों की तरफ झुकने लगता है कि उमामा की बंद आंखें देखकर वो रुक जाता है। आंखें खोलो उमामा और मुझे देखो। सिकंदर उस पर झुके हुए उमामा को मुकम्मल तौर पर अपने हिसार में लिए कहता है। नहीं सिकंदर, उमामा बंद आंखों से जवाब देती है। आंखें खोलो अपनी उमामा, वरना बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। सिकंदर उमामा के कंधे पर अपनी लब रखते हुए कहता है, वो आप पहले ही मुश्किल कर रहे हैं। उमामा अपना कंधा उचकाने की कोशिश करते हुए कहती है, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अगर अभी आंखें खोलकर मुझे नहीं देखा तो फिर जो होगा। सिकंदर के धमकाना लहजे पर उमामा झट से आंखें खोल लेती है। आप अभी भी मुझे धमकी दे रहे हैं, इस हालत में भी? उमामा अपने आप को सिकंदर के हिसार में देखते हुए कहती है, यह हुई ना बात मेरी जान, अब अगर दोबारा आंखें बंद की तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूँगा। उमामा के होठों पर अपने लब रखते हुए कहता है, आप अभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उमामा सिकंदर से नज़र हटाते हुए कहती है, हाय मेरा बच्चा, इतनी सी बात पर नाराज़ हो गई? तुम मुझसे गुस्सा मत करो मेरी जान, रोमांस करो और मुझे भी करने दो, बाकी की लड़ाई हम कल करेंगे। सिकंदर कहते ही उमामा के कंधे से पल्लू मुकम्मल तौर पर हटाते उस पर मुकम्मल काबिज हो चुका था। सिकंदर आप बहुत बुरे हैं। उमामा सिकंदर के बालों में हाथ रखते हुए कहती है, अभी तक तो बुरा नहीं बना मैं तुम्हारे लिए, लेकिन अब बहुत बुरा बनूंगा मैं तुम्हारे लिए, याद रखोगी आज की रात हमेशा तुम। सिकंदर कहते हुए उमामा के होठों पर झुके उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगता है। उमामा भी खुद को उसकी मोहब्बत में उसकी शिद्दत में खुद को सैराब करने लगती है। सिकंदर की मोहब्बत पर वो खुद को पुरसुकून करते उसकी मोहब्बत में खोने लगती है। दूसरी तरफ एक नई सुबह का आगाज़ हो गया था। सब लोग पुरसुकून हुए अपनी अपनी नींदें पूरी कर रहे थे सिवाय वजदान के। सोता वो गहरी नींद में रहा था, लेकिन उसकी तरह बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी। स्टूल पर हीर के हाथ पर सर रखे वो गहरी नींद में सोया पड़ा था। हीर की आंख खुल गई थी। वो अपने सामने बैठे हुए सोते हुए वजदान पर
वजदान को पुरसुकून से सोता देखकर वो गर्दन टेढ़ी किए वजदान को देखती रहती है। अपना बायां हाथ वो अभी उसके बालों में चलाने ही लगी थी कि वजदान की आँख खुल जाती है। वजदान झट से सर उठाकर हीर को देखता है। ठीक हो तुम? वजदान हीर का दूसरा हाथ भी अपने हाथों में पकड़े हुए नींद से भरी नज़रों से धुंधला धुंधला से देखते हुए पूछता है। जी ठीक हूँ मैं, पर आप? हीर कहती है कि वजदान उस पर झुके उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। हीर भी वजदान को बाहों में कैद किए उसकी कमर पर हाथ फेरने लगती है। खाना ले आऊं गुड़िया? ही वजदान हीर की गर्दन पर अपनी लिप रखते हुए पूछता है। आपको नींद आ रही है अभी? हीर उसकी बात का जवाब नहीं देती और खुद सवाल पूछती है। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। वजदान हीर से दूर होते हुए कहता है। आप सो जाए। हीर वजदान के लिए बेड पर जगह बनाते हुए कहती है। मुंह धोएंगे आंखें खुल जाएगी, तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। वजदान वापस स्टूल पर बैठते हुए कहता है। वजदान, मुझे थोड़ी सी ही चोट लगी है, आप ऐसे भाग क्यों रहे हैं मुझसे? आपको क्या लगता है कि मैं अपाहिज हो गई हूँ इसलिए ऐसा कर रहे हैं? हीर को उसकी दूरियाँ उसकी बेरुखियाँ लग रही थी, जबकि वो उसी की फिक्र में कर रहा था। ऐसे क्यों कह रही हो? तुम ठीक हो? बस सिकंदर ने कहा था कि एहतियात की ज़रूरत है, तो मैं बस इसीलिए। वजदान कहते कहते खामोश हो जाता है। मैं भी तो कह रही हूँ मैं ठीक हूँ, ऐसी चोट मुझे पहली बार तो नहीं लगी है। आप और भाई इसको मेरी बहुत बड़ी चोट बना रहे हैं। हीर उठकर बैठते हुए कहती है। आराम से। वजदान उसकी कमर पर हाथ रखते हुए फिक्रमंदी से कहता है। उफ वजदान, बच्ची नहीं हूँ मैं। गहरी सांस लेते हुए वजदान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है। हरकतें भी ना करो बच्चों वाली फिर तुम। वजदान हीर की कमर के पीछे तकिया सेट करते हुए कहता है। मैं करती भी नहीं। कहते हुए हीर की नज़र उसके होठों पर जा टिकती है। बाबा ने हाथ क्यों उठाया था आप पर? हीर होठों को देखते फिर वजदान की आंखों में देखते हुए पूछती है। बताया तो था, उनकी बेटी का इतना अच्छा ख्याल रखा है, उसका तोहफा था ये। वजदान साइड टेबल से पानी की बोतल ली उसे खोलते हुए कहता है। जवाब दे दिया आपने इसका उनको? हीर वजदान को गर्दन मोड़ कर वजदान को पानी पीता देखते हुए पूछती है। क्यों, तुमने लड़ना है मेरे लिए? वजदान पानी की आधी बोतल पीकर हीर की तरफ बढ़ाते हुए जस्तजु से पूछता है। जाहिर है जब मैं उन्हें एक बात क्लियर कर चुकी हूँ तो मेरे माँ बाप को फिर दूसरी ट्रैक पर वापस क्यों ले जा रहे हैं? हीर पानी की बोतल पकड़ते हुए कहती है। माँ बाप है तुम्हारे, फिक्र है तुम्हारी, ये तो होगा। वजदान मुसलसल हीर को देखते हुए कहता है, जो किसी ख्याल में खो चुकी थी। फिक्र का मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी पर भी हाथ उठाओ और किसी की भी ज़िंदगी का फैसला कर दो। हीर गुस्से में जवाब देती है। हीर के जवाब पर वजदान कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ता है और बढ़ते ही दोनों हाथों से खिड़की खोले और सूरज की किरणें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस करके सर झुकाकर गहरी सांस लेता है। हीर आलम से हीर वजदान यमान का सफ़र तय हो चुका है। वजदान धीरे से बंद आंखों से कहता है। हीर को वजदान ने अपना बना लिया है। तुम्हारी बेटी को आज तुम पर गुस्सा आ रहा है। मुबारक हो, तुम्हारी तबाही का आगाज़ तुमने अब खुद किया है। अब तुम्हारी बारी डेविल। हाथ उठाया था मुझ पर, इसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए तुम्हें। वजदान आंखें खोले खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है। वजदान एक बार फिर से गहरी सांस लेता है और मुड़कर हीर को देखता है, जो खुद भी किसी सोचों में खोई हुई थी। इतनी टेंशन किस बात की ले रही हो? मैं तो यही हूँ। वजदान हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है। वजदान घर चले अपनी जानिब बढ़ता देखकर पूछती है। अभी नहीं, आज का दिन तुमने और यहाँ रुकना है। वजदान हीर के हाथ से पानी की बोतल लेते हुए कहता है। पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीर अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है। जानता हूँ तुम ठीक हो गई हो, लेकिन एहतियात भी तो ज़रूरी है। तुम्हारे मामले में लापरवाही तो नहीं कर सकता हूँ ना मैं? वजदान हीर के पास बेड पर बैठते हुए कहता है। हीर के सर पर एक अजीब टेंशन सवार हो चुकी थी, जिसे वजदान बआसानी महसूस कर रहा था। खूबसूरत लग रही हो। फरजान हीर का मूड बदलने के लिए कहता है। ये सारी बातें मुझ पर काम नहीं करती मियाँ जी। हीर अपने पीछे कमर से लगे तकिए से सर टिकाते हुए कहती है। सच में लग रही हो। सोच रहा हूँ तुम्हें सर से पैर तक ऐसा मोटा कर दूँ। फरजान हीर के हाथ को अपने हाथों में पकड़े उसकी तरफ देखते हुए कहता है। जी नहीं, मुझे मोटा नहीं होना। हीर वजदान के हाथ पर थप्पड़ मारते हुए कहती है। क्यों नहीं होना, मैं तो करूँगा। आज के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, घर में रहोगी। और घर में भी तुम फ्री नहीं रहोगी। सारे दिन मैं तुम्हें कुछ ना कुछ खिलाता रहूँगा, जिससे तुम मोटी हो जाओगी। वजदान हीर के गाल खींचते हुए हंसते हुए कहता है। वजदान की बात पर हीर भी मुस्कुरा देती है। पता है, आज तुम बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसी मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। वजदान सर झुकाए हीर के हाथ पर लगे कैनोलों को देखते हुए कहता है, और कहते ही वो मंजर सोचे वो मुस्कुरा देता है। कैसी? हीर वजदान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हुए कहती है। सफ़ेद कपड़ों में हाथ में हील पकड़े, रो रो कर गोल गप्पे जैसा क्यूट सा चेहरा किए, गालों को और नाक को लाल किए, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह लग रही थी तुम। पर एक चीज़ चेंज है। वजदान कहते कहते सर उठा लेता है। किस चीज़ की? हीर वजदान की बातों में खोते खोए अपनी सोचों से आज़ाद हो रही थी। तुम्हारी आंखें। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए कहता है। तब ब्राउन थी, ये अब सुरमई हो गई है। वजदान कहते कहते बेड पर घुटने के बल खड़ा होते ही हीर की आंखों पर
اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ تمہاری ان براؤن آنکھوں نے مجھے تم سے محبت میں مبتلا کیا تھا، لیکن ان سرمئی آنکھوں نے تم سے عشق کروایا ہے۔ مجھے اس لیے تمہاری حفاظت تو مجھے خود سے پہلے ہی کرنی پڑے گی۔ ہیر کے چہرے کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، وجدان کے لیے اس کا اپنا آپ اتنا ضروری نہیں ہے جتنی تم ہو۔ تمہاری چھوٹی سی چوٹ بھی مجھے پہاڑ لگتی ہے، اس لیے میری جان اس آج کا دن یہاں رہ لو، مجھے تسلی ہو جانے دو کہ تم مکمل طور پر ٹھیک ہو، پھر ہم کل اپنے گھر چلیں گے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہیر کے ماتھے پر بوسہ دے دیتا ہے۔ رہ لو گی نا آج کا دن یہاں؟ وجدان ہیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو ایک طرح سے اسے اپنی باتوں میں الجھا کر مجبور کر چکا تھا، دوسری طرف وہ اس سے اجازت لے رہا تھا۔ رہ لوں گی، ہیر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیتی ہے۔ شکریہ، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ وجدان ایک بار پھر ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر باہر کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ اب اس کی آگے کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں سے شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔